اگریشن کو پکڑیں. باقی بیٹنگ میں آپ کے 8 بلے باز ہیں, 4 نہیں چلیں گے, 4 ہی چلیں گے اور آپ ہرا سکتے ہیں. وہ جو مڈ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں گوڈے گوڈے تک, وہاں سے نکلیں کیسے؟ کیا سائم کا نمبر چینج کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ابرار کی فرینڈلی بولنگ کا کیا کرنا ہے؟ سائم نئے کا ہے, سائم نئے کا ہے, ٹھیک ہے, سائم کا پیس ہے, سائم جو ہے نیا بال سے بال کرتا ادھر سے ہے. ابھیشک شرما ہے 300 رنز بنا چکے ہیں ایشیا کپ میں. نا آپ کیوں سائم پہ اور جا رہے ہیں؟ انڈیا والوں کو اعتراض ہے کہ یہ پاکستانی اپتی جنک اشارے کرتے ہیں, اس کرکٹ کی مریادہ کو نقصان پہنچتا ہے. تو آپ امپائر کو روکیں گے اس طرح سے 6 کا اشارہ نہ دے, روکیں گے؟ السلام علیکم دوستو, آج چاند آتا ہے. میں آئی سی سی اکیڈمی میں موجود ہوں. میرے ساتھ 2 اسپورٹس جرنلسٹ اعجاز وسیم باقری اور سردار اورنگزیب صاحب موجود ہیں. ان سے کوئی مزے کی باتیں کریں گے پلے 11 سلمان علی آغا کی پریس کانفرنس کے بھی حوالے سے اور کل والے میچ پہ بھی. جی اعجاز, کیا کہتے ہیں کل والا میچ 41 سال بعد پاکستان اور انڈیا کا فائنل ہونے جا رہا ہے؟ شکریہ جہانزیب. دیکھیں, انڈیا پاکستان کا یہ فائنل میچ ضرور ہونے جا رہا ہے, لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم کو وہ جو پرانے داغ تھے ان کو دھونے کے لیے ایک اپرچونٹی ملی ہے. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, آپ نے 2 میچز کھیلے ہوئے ہیں, آپ کے اوپر شاید اتنا برڈن نہ ہو جتنا انڈین ٹیم کو لگاتار تیسرا میچ جیتنے کے اوپر ان کے اوپر برڈن ہے. اور پھر پاکستان کے کرکٹرز کو 2 میچز ہارنے کے باوجود بھی پاکستان کے اندر اتنا ٹرول نہیں کیا گیا جتنا انڈین کرکٹرز کو اس بات کا ڈر ہے, کیونکہ پہلے شیک ہینڈ کے اوپر ہم نے دیکھا تھا جب پریس کانفرنس میں بھی تھی, تو ان کو بہت ساری دنیا کو, بہت سارے لوگوں کو, بہت سارے فیکٹر ہیں جن کو ان کو راضی کرنا ہے اور خوش رہنا ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم کا کیا ہے کہ صرف ہم, میرے اور آپ جیسے جو فینز ہیں, ان کو راضی کرنا ہے اور اچھی کرکٹ کھیلنی ہے. پاکستان نے انڈیا کے ساتھ جو سیکنڈ میچ کھیلا اس میں جو پاکستان نے پرفارمنس دی ہے, اچھا کھیلے, فائٹ کر کے ہارے ہیں, شاید پاکستانی قوم کو اتنا برا نہیں لگا ہے. سو میں اپنے لڑکوں سے صرف یہی توقع کروں گا کہ حارث رؤف کو کاپی کرو, حارث رؤف والے اگریشن کے ساتھ کھیلو. آپ ہار جاؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن آپ نے اس اگریشن کے ساتھ کھیلنا ہے جو اگریشن ریکوائرڈ ہے. کیونکہ انڈیا کے ساتھ جو آپ 2 میچز کھیلے ہوئے, کہیں مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ پلیئرز اس شیل میں نہ چلے جائیں کہ یار ہم نے بہت محتاط کھیلنا ہے. سری لنکا نے لاسٹ نائٹ جو 200 کے اوپر 200 کیا ہے وہ اسی کی مثال ہے. تو پاکستانی ٹیم نے آخری جو 2 میچز جیتے ہوئے ہیں ان میں بھی پاکستان کی بیٹنگ سٹرگل ہوئی ہے, پاکستان کی بولنگ ہے, لیکن ہمیں سارا دار و مدار بولرز پہ کرنے کی بجائے ہمارے بلے بازوں کو اگریسولی جائیں, پورے اس حساب سے جائیں کہ انڈیا کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور میں آپ کو جہاں سے ایک اور بات بتاؤں, اورنگزیب بھی اس بات کے گواہ ہیں, جو ٹینشن چل رہی ہے, جو ماحول ہے, جو اس وقت حالات چل رہے ہیں, جس طریقے سے حارث رؤف کے اوپر زبردستی جرمانہ تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے, سوریا کمار یادو کے جرمانے کو بیلنس کرنے کے لیے سرکاری پریس ریلیز روکا گیا ہے, پی سی بی کے سربراہ وہ کرتے ہیں, ٹویٹ کرتے ہیں کہ جناب آپ کو یہ جو بیلنس ایکٹ ہے اس کو آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. تو وہ بہت کچھ چل رہا ہے, یہ تمام چیزیں پاکستان کے حق میں جا سکتی ہیں. سو میرا ذاتی خیال یہ ہے, ایک چیز ہے اگریشن کو پکڑیں, باقی بیٹنگ میں آپ کے 8 بلے باز ہیں, 4 نہیں چلیں گے, 4 ہی چلیں گے اور آپ ہرا سکتے ہیں. آپ کیا کہیں گے سیم ایوب کا؟ میں سوال آپ سے کروں گا. سیم ایوب کی فارم ایشیا کپ میں تو 4 میچوں پہ 0 پہ آؤٹ ہیں. کل کا میچ کیا سیم ایوب کو کھلا رہے ہیں, اور سیم ایوب کی فارم کو کیا ہوا ہے, کس جگہ وہ مسٹیک؟ دیکھیں, آپ اس سٹیج پہ پہنچ سکے ہیں کہ سائم ایوب میں کسی بھی پلیئر کو آپ ڈراپ یہاں پہ نہیں کر سکتے. سائم ایوب آپ کے رنز نہیں کر رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ان کے 6 میچوں میں 23 رن ہے, لیکن وہ جو اپنی بالنگ سے امپیکٹ ڈال رہا ہے نا, آپ کے ٹاپ 3 وکٹ ٹیکر میں 8 اس نے وکٹیں لی ہوئی ہیں, فیلڈنگ اچھی کر رہا ہے. اور اس سٹیج پہ جا کے کسی نئے پلیئر کو اگر آپ لاتے ہیں تو اس کی جگہ کون آئے گا؟ خوشدل شاہ آ جائے گا, یا آپ محمد حارث کو اوپر لے کے ہیں, تو کوئی بھی نیا محمد حارث کون سا فارم میں؟ نہیں, کوئی بھی نہیں, آپ شفل کر سکتے ہیں نا, آپ شفل کر سکتے ہیں, یہ فارم میں نہیں ہے. لیکن کسی بھی نئے پلیئر کو آپ نے نا, آپ نے یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے چیمپئن ٹرافی میں کیا تھا جب امام الحق کو لے کے آئے تھے آؤٹ آف دا باکس جا کے. تو میرا نہیں خیال کہ اس ٹائم کے اوپر ہمیں جانا چاہیے کہ کسی ایسے پلیئر کو ہم لے کے آئیں کہ دیکھیں انڈیا کے خلاف ویسے بھی جو میچ ہوتا ہے نا وہ بہت پریشر والا میچ ہوتا ہے, اور پھر وہاں ایک ایسا نیا آدمی لے کے آئے جس کا کم بیک ہو تو وہ بالکل بھی رن نہیں کر سکتا. میرے خیال میں یہ ٹائم ہے کہ ہم سائم ایوب کو بیک کریں, کیونکہ اگر وہ اپنی بیٹنگ سے نہیں تو اپنی بالنگ سے میچ جتا رہا ہے. اور آخری میچ میں جو اس کا کیچ تھا, بڑا فیمس کیچ تھا, وہ پریشر والا کیچ تھا, وہ جو نہیں تھا فیلڈنگ میں بھی اچھا کر رہا ہے. تو میرے خیال میں ان کو بیک کرنا چاہیے. سلمان علی آغا رنز نہیں کر رہے, محمد حارث رنز نہیں کر رہے, فخر زمان آپ کی اس طرح سے رن نہیں کر رہے, صاحبزادہ فرحان ایک اچھی ضرور کری ہے لیکن اس کو کنورٹ نہیں کر رہے, وہ 60 70 80 میں لمبا نہیں لے کے جا رہے. تو بیٹنگ میں مسئلے مسائل تو ہے, لیکن یہ وقت نہیں ہے کہ ہم چینجز کی طرف جائیں, ہم بہت زیادہ شفلنگ کی طرف جائیں. میرے خیال میں یہ سارے لڑکے وہ ہے کہ پاس میں بہت زیادہ رن کر کے آئے ہیں, اور ان میں سے کوئی بھی نیا نہیں ہے. سارے 30 40 میچ کھیل کے آئے ہوئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ بیک کرنا چاہیے, اور یہی لڑکے انشاءاللہ کل رن کریں گے. سردار جی, ایک ہم نے ڈراسٹک چینج دیکھا تھا, شاہین شاہ آفریدی کو 5 آؤٹ کے بعد 6 نمبر پہ بھیج رہے, بلکہ 7واں نمبر بنتا تھا کیونکہ 7ویں پہ آیا تھا.
शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर जो रलाई किया गया था उससे एक पूरी दुनिया को पिक्चर ये गई कि तबाह बर्बाद, आपके अपने बल्लेबाजों को आगा और हेसन को ट्रस्ट नहीं रहा तो शाहीन से 2-4 छक्के मरवाने के लिए भेजा हुआ है। ऐसी तो, बात नहीं है। तो वो जो तबाही का आंसर था उस मैच में, उसके बाद आप ये फाइनल, उसके बाद दूसरा मैच खेलने जा रहे हो। मुझे इसीलिए सलमान अली का बहुत पसंद है, जो मैं आज उनकी तारीफें कर रहा हूँ कि एज ए बैटर वो रन नहीं कर रहे, तो एज ए कप्तान उन्होंने बहुत बड़े फैसले किए हैं। मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ से आगे जो उन्होंने भेजा, मेरा मकसद फैसला करने का नहीं है, आपकी तबाह कुन बैटिंग का वो नतीजा था कि आपको शाहीन के छक्कों पर रिलाई करना पड़ा। वो आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए उस मौके के ऊपर आपको एक बैटर चाहिए था, उसने क्या करना था, उसने सिर्फ 1-2 छक्के लगा के मोमेंटम शिफ्ट करना था। तो वो जो डिसीजन है, मैं आपकी बात को भी सेकंड कर रहा हूं, लेकिन वो जो डिसीजन था ना सलमान अली को शाहीन शाह अफरीदी को ऊपर लाने का, वो बहुत इंपैक्टफुल साबित हुआ। और ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है शाहीन शाह अफरीदी ने कल नहीं, इससे पहले जो आपकी ट्राई नेशन सीरीज थी उस पर भी उसने बैटिंग में एक मैच जिताया, और इससे पहले भी शाहीन शाह अफरीदी अपनी बैटिंग से मैच जिता के आए हैं। ये तो अब छुपी टकी बात नहीं रही कि आखिरी जो पाकिस्तान के, ऐसा लगता है कि आखिरी जो 4-5 हमें सच बोलना चाहिए भैया, अभी इधर कैमरे के अंदर है, हमें सच बोलना चाहिए। यूएई के खिलाफ आप अबू धाबी में श्रीलंका के खिलाफ आप 134 चेज करने जा रहे थे, आपने 65 पे 5 गिरा दिए, यहां पे भी आपके 5 गिर गए थे, तो शाहीन को लाना पड़ा था। वो जो मड के अंदर फंसे हुए हैं गोडे गोडे तक, वहां से निकले कैसे? देखिए यही मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब देखिए इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं ना एजाज भाई, कि इस मौके पर ऊपर आके, इतने बड़े फाइनल पे आके, जो 41 साल में पहली दफा ये लोगों को देखने का मौका मिला। और इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है, जो भी प्लेटफॉर्म हो, कोई क्रिकेट के अलावा भी कोई मैच हो, उसमें बहुत प्रेशर होता है। मुझे आप बताएं कि इस मौके ऊपर अगर साइम अयूब या मोहम्मद हारिस को आप ड्रॉप करते हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा है, और क्या जो आपके बेंच स्ट्रेंथ पे बैटर बैठे हुए हैं वो आके डिलीवर कर पाएंगे? तो आंसर है नहीं, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें इन लड़कों को बैक करना चाहिए। और एक जो मैं आपको ये कह सकता हूं कि इसी प्लेइंग 11 के अंदर मुझे कल लगता है कि साइम अयूब को वो शफल कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। अब आप पहले खेलते हैं, बैटिंग करते हैं, या आप चेज करते हैं, या फिर आपके बोर्ड पर रन्स क्या चल रहे हैं, उस सिचुएशन के हिसाब से अब कल देख सकते हैं कि साइम अयूब को आप फिर भी अवॉइड कर रहे हैं, पता नहीं आप उस असल बात की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं। आपने आखिरी जो 2 मैचेस खेले, श्रीलंका एंड अगेंस्ट बांग्लादेश, उसके दरमियान में आपने और कोई मैच नहीं खेला है। दोनों मरतबा आप 65 के ऊपर 5 आउट करवा बैठे हो। वो जो गोडे गोडे तक फंसे हुए हैं, क्या साइम का नंबर चेंज करने से मसला हल हो जाएगा? देखिए मेरी बात सुनिए ना, अगर मसला आपने हल नहीं करना ना, इसी के साथ जाना, तो अगर 65 पे फिर 5 आउट हो गए तो उसके बाद जाके क्या घर लाहौर में जाके फिर ये मसला आपने हल करना है, सॉल्व करना है। साइम अयूब इस वक्त फंसे हुए हैं, और शायद अयूब का नंबर जो है बड़ा की नंबर है, क्योंकि 1 डाउन अगर ओपनर आपकी विकेट, हमने देखा कि 6 ओवर में हमारी विकेट गिरती है, और साइम अयूब 3 तो सिफरें लगा चुके हैं, 1 में उनके 22 रन है। तो अगर आप इसी पे रिलाई करते हैं, अगर साइम अयूब फिर आउट हो जाते हैं, तो फिर हमने ये जो गुत्थी है, ये हमने एशिया कप के बाद जाके सुलझानी है। तो इसलिए आप साइम अयूब को ये कर सकते हैं कि आप एक ट्रिक खेल सकते हैं, आप मोहम्मद हारिस को 1 डाउन भेज दें, अगर वो चल गया तो शाम तक, ना चला तो मोहम्मद हारिस नंबर 7 पे भी कुछ नहीं कर रहा है, नंबर 8 पे भी कुछ नहीं कर रहा है। अब वहां पे मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस ये है कि आपको उससे पहले शाहीन शाह अफरीदी को भेजना पड़ रहा है, या मोहम्मद नवाज को, और कई दफा तो राना फहीम अशरफ भी उससे पहले आए हैं। तो ये आपको थोड़ी सी टेक्निक खेलनी पड़ेगी। मैं फिर ये नहीं कहता कि कोई हर्फ आखिर है, आपको कल सिचुएशन देखनी पड़ेगी। आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, आप बाद में बैटिंग कर रहे हैं, अगर पहले कर रहे हैं तो आपका पावर प्ले में रन्स क्या है, अगर रन्स बोर्ड पे अच्छे लग गए हैं, अगर ये मार्जिन हो साइम अयूब के पास कि आप जाके 10 बॉलें वहां पे खेल सकते हैं, 10 पे बेशक 10 ही करें, तो फिर साइम अयूब को भेज दें। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वहां पे आप सिंगल डबल भी ना करें, आपकी बैटिंग लग जाए, मैं समझता हूँ आप मोहम्मद हारिस को ना भेजें, सलमान अली का खुद ऊपर आ जाए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इसी इंडिया के खिलाफ जब आप 21 तारीख को खेले, आपने 9 ओवर में उनको 100 मार दिया, ठीक है, उसके बाद आपने अगले 2 मैचेस खेले, आपने 65 पे 5 जो है ना वो अपनी, मैं अब क्या जनाजे उठाने का लफ्ज इस्तेमाल करूं, लेकिन मुद्दा ये है मेरा भाई, इब्रार की फ्रेंडली बॉलिंग का क्या करना है? नहीं, इब्रार देखें ना, पहले एक मैच में उसने स्ट्रगल किया ना, कैसे, कौन सी फ्रेंड, एक आपने इंडिया के खिलाफ उसने स्ट्रगल किया, पहला ओवर फ्रेंडली नहीं होता, कल भी उसने 8, देखिए पहला ओवर आप उसको यूज कर, अभिषेक शर्मा, आप उसको यूज कर सकते। देखिए इब्रार आपका नए बॉलर का बॉलर नहीं है, क्योंकि इब्रार स्लो करता है, इन द एयर स्लो करता है, साइम ठीक है, साइम का पेस है, साइम जो है नया बॉल से बॉल करता है, अभिषेक शर्मा है 300 रन बना चुका है एशिया कप में। ना आप क्यों साइम पे और जा रहे हैं, आप अपने अटैक करें। आपने लास्ट मैच में क्या किया, राना फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, आखिर में जाके आपका शाहीन के 3 एक साथ करा दिए, एक साथ कराएं शाहीन के साथ, उसके साथ लगाएं आप राना फहीम अशरफ को। अगर सीमर के लिए थोड़ी सी मदद है, आप 1 ओवर वहां पे हुसैन तलत से करा दें, आपका हारिस रऊफ है उसको डाल दें। पिछले मैच में आपने यही किया ना, आप यही करें, आप 134 डिफेंड करने में कामयाब हो गए। आपका कप्तान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात क्यों कर गया कि जी टॉस सिर्फ गेम स्टार्ट करने के लिए एक बहाना रह गया, क्योंकि आपने इंडिया के खिलाफ दोनों मरतबा पहले वारी लिया और उन्होंने आसानी से चेज किया है। बहुत प्रोफेशनल आदमी है, क्या कप्तान आज ही मैच हार जाता है ये कह के टॉस पे डिपेंड करेंगे, तो फिर इसका मतलब है कि कल आप टॉस हार गए तो आप आधा मैच हार गए। कप्तान ने तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, कप्तान के बाकी जवाब आप देखे ना,
कप्तान ने कहा जो मर्जी करता है, और कप्तान का ये कहना बनता है क्योंकि आप मैच जो टॉस पे नहीं खेल रहे, कल आप चेज करके जीते, उससे पहले आप चेज करके हार गए थे, तो ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये विकेट पे नहीं जाना चाहिए। 19-20 का फर्क जरूर होता है। हाँ, स्टैट्स अगर देखें तो पिछले मैचेस पे इंडिया हमें चेज कर गया था, लेकिन पाकिस्तान जो आखिरी मैच खेला वो चेज करके जीता और बुरे हालात में चेज कर दिए पाकिस्तान ने। तो ये जो आप बैटिंग की बात कर रहे हैं, इसमें डेफिनेटली साइम अयूब को, सलमान अली आगा को, खुद फखर जमान से मैं मुतमईन नहीं हूं जिस तरह की फखर जमान की गेम है। क्या कर रहा है फखर जमान? ये 20-19-15 रन फखर जमान के हमें नहीं चाहिए। हमें जो टॉप 3 है, इन टॉप 3 में से एक लंबा 70-80 चाहिए, आपत्ति- तब जाके पाकिस्तान यहाँ से निकलेगा। इंडिया वालों को इतराज है कि ये पाकिस्तानी आपत्तिजनक इशारे करते हैं, उस क्रिकेट की मर्यादा को नुकसान पहुंचता है। ऐसे और ऐसे आपत्तिजनक इशारे होंगे यार ये या आईसीसी ने डरा दिया? आपको बताऊं ना कि ये इशारे रुकने वाले नहीं है। आप बेशक ना जितना करें। मर्जी आप आईसीसी में हायरिंग इसकी कर लें, आप जितना मर्जी अपने मतलब के मैच रेफरी लगा लें, अंपायर लगा लें, ये शुरू किसने ये किया? 6 सिफर का मतलब क्या ये है? शुरू किसने किया? ये मतलब क्या है? 6 का मतलब 6 सिफर का मतलब सिफर, इसमें क्या रॉकेट साइंस है? इसमें कोई रॉकेट साइंस है? अब कैसे रोक सकते हैं? तो तो आप अंपायर को रोकेंगे इस तरह से 6 का इशारा ना दे? रोकेंगे तो हो सकता है आईसीसी छक्के का सत्ता देना शुरू कर दे। नहीं। बार कोच अगर बैठ के करे कि ये तो थोड़ा डेंजरस हो रहा है, इसमें रन नहीं बनाना, सिफर ही रहने दो, फिर क्या करेंगे? फिर तो वो आगे से वो कहे नहीं अगर वो करे अगर नहीं कोच ये आसान बॉलर मेरे को छक्का मारना चाहता हूँ, फिर क्या करेंगे? ये नहीं रुकता। नहीं, मेरी बात सुने तो ये नहीं फिर तो टेंशन बन जाएगी। ये तो मैं आपको बता दूं, हम तो पैदा ही हॉस्टाइल करोड़ होगा। आपको हम तो- बताइए, आपको हम तो बताइए, ऐसी कौम है- इंडियन 80% हम होंगे, ऐसी वो कौम इस है- घमंड में आएंगे कि हम फिर हम हराने जा ऐसी रहे हैं। कौम है कि हम 75 साल में हमें जितनी टेंशन दी जाती है ना, उस टेंशन में ही हमारा असल चेहरा बाहर निकल गया था, और उभरते हैं टेंशन को, और टेंशन लेके टेंशन देने का जो हमें जो हुनर आता है ना, हमें मजा ही उसी में आता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो आईसीसी ने हेयरिंग की है, जो हारिस के ऊपर 30% जुर्माना लटक रहा है, जो साहबजादा को वार्निंग जारी हुई है, जो सूर्या को जुर्माना हुआ है, उससे ये आपत्तिजनक चीजें जो उनको लगती इससे हैं? फर्क नहीं पड़ने वाला। ये किया ही इसलिए किया गया है कि ये जो माहौल पैदा किया गया है ना, जो उनकी तरफ से, वो कहते हैं कि इस माहौल को रोका जाए। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये जैसे सूर्या कुमार यादव ने कहा था ना कि कुछ चीजें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ऊपर होती हैं, तो कुछ चीजें इस जुर्माने से बहुत ऊपर निकल गई हैं। वो चाचा पाकिस्तानी खड़ा था, वो कहा ये जुर्माना मैं दूंगा, कल कोई और आपकी तरह हमारी तरह खड़ा होगा कि 60% कर ले मैं दे दूंगा, कल कोई और खड़ा जाएगा 100% दे दे मैं खड़ा हूंगा, क्योंकि अब दो मुल्कों के दरमियान बात आ गई ना। अब जो बात है ना, वो मैदान से बाहर आ गई है, तो लाखों पाकिस्तानी ऐसे जुर्माने देने को तैयार हैं और जुर्माने कुर्बान करने को तैयार हैं। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, जहां से जो ये इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच है, इसको देखो, क्रिकेट में हार जीत होती है, हम कल रात को हार जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर पाकिस्तान जीत गया ना, तो फिर बहुत सारी जो चीजों, बहुत सारे जो लोग हैं ना, जिनकी गर्दन में सरिया है, चाहे हम जिस बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी आईसीसी ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, जो यकतरफा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिसरेस्पेक्ट करने का कोई मौका नहीं जाने देते हैं। मैं ऑन एयर कह रहा हूं, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तमाम चीजें नोट भी करता है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एंडी पाइक्राफ्ट के ऊपर प्रोटेस्ट किया था, वो भी यही था। सो पाकिस्तान क्रिकेट की जो जीत है ना, उससे बहुत सारी चीजें जो है ना, वो फ्लैट हो जानी है। आप हार गए, मुझे नहीं पता कि अब जो है ना वो क्या रिएक्शन होगा, बट जीत के साथ बहुत सारी चीजें सुलझने वाली हैं। एक थोड़ी सी चीजें मैं ऐड कर दूं, इंडिया मैच हारे या जीते, दोनों तरफ से उसको जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। क्यों? अगर तो आप जीतते हैं तो सलमान अली आगा ट्रॉफी उठाएगा, मोहसिन नकवी से कहेगा अस्सलाम वालेकुम भाई, ठीक है। अगर आप जीत गए तो आप ट्रॉफी मोहसिन नकवी से लेंगे, जिस मोहसिन नकवी ने साइन करके भेजा था कि वो 6, आप उससे लेंगे। अगर आप उससे लेंगे तो फिर आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपने सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था? तो दोनों तरफ जिल्लत है। नहीं, और इंडियंस को प्रोफेशनली बिहेव करना चाहिए। अब टूर्नामेंट अब तो पाकिस्तान की बारी है ना, अब उनके पास क्या बिहेव करने के लिए, अब तो ये बिहेव हमें देना चाहिए, मैं हमें फिर जस्टिस भी देना चाहिए। तवक्को करूंगा कि अच्छा जेस्चर छोड़ के जाएं, टूर्नामेंट के एंड के ऊपर अच्छा जेस्चर छोड़ के जाएं। गलत जगह से बिहेवियर की तवक्को, अच्छे की तवक्को कर रहे हैं, गलत जगह से लेकिन कर रहे हैं। कैप्टन दोनों कैप्टन ट्रॉफी के साथ तस्वीर होगी। ये तस्वीर तो हो जाएगी, तस्वीर में क्या आप दरमियान में ट्रॉफी ये पड़ी है, सेंटर इधर-उधर में खड़े ट्रॉफी हुए है, फोटो बन जाएगी। ये वो है, ये में वो ट्रॉफी और जहां बन से देख रहे हैं, ये जो यहाँ कर रहे हैं, ये विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भी नजर आने वाला है। ये अगले साल तो बात खत्म वर्ल्ड नहीं कप में होने आने ये वाला तो नजर हॉकी और फुटबॉल सब गेमों में नजर आएगा। नजर आएगा, ये तो होगा। थैंक यू। मुझे दीजिए यहाँ पर इजाजत। थैंक यू जाज वसीम बाकरी, औरंगजेब सरदार औरंगजेब साहब, अल्लाह हाफिज।